Welcome back, everyone. Let's continue with our MCQ series for class 10 students of chapter number 1 Light. In the last video, we have discussed some of the MCQs questions. In this video, again, we will discuss some more MCQ questions. So let's continue without wasting the time. The first question that we are having is, which of the following relations is true? जो आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं उनमें से कौन सा रिलेशन सही है। सो ऑप्शंस को देखो, आपको आइडिया लग रहा होगा कि रिलेशन किसके बीच में पूछा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एंड फोकल लेंथ के बीच में, राइट। और आपको लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी या आपको चैप्टर भी अगर आपने ढंग से रीड करा होगा, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, राइट। So if I divide this equation by focal length, what will I get? R divided by F, that will be 2F divided by F. F से F cancel, so that is equals to 2. So which option is matching? Option number B is matching. So option number B is the correct answer. So option number B is the correct answer. Let's move to the next question. Question number 2. What it is saying? Correct mirror formula is. So mirror formula, that is the relation between object distance, that is small u, image distance, that is v, and focal length, that is f, right? And I have told you how to remember the mirror formula. M refers to minus sign, so M also refers to mirror. So in mirror formula, opposite of the minus is positive. So in mirror formula, plus sign will be there. Clear? So what will be it? Mirror formula is 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u. Clear? So which option is matching there? Option number D is matching, right? So option number D is the correct option. Now let's move to the next question. Question number 3. The image of an object in a concave mirror. concave mirror में आपके पास 6 केसेस होते हैं और 6 केसेस में से आपके पास वर्चुअल इमेज भी बनती है एक केस में, और बाकी के 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस। इज ऑलवेज रियल, is always virtual, may be real or virtual, or is always erect. Okay, so which option is correct there? Maybe real or virtual, because both options of the image is possible in the case of the concave mirror, right? अगर यहाँ पे concave की जगह convex mirror होता, so कौन सा होता? convex mirror में आपकी कौन सी इमेज बनती है हमेशा? Always virtual image is formed, so उस केस में ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है, right? Okay, so let's move to the next question. Linear magnification in the case of a mirror, क्या फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का? It is defined as the ratio of height of image to the height of object, and in the case of the mirror, that is also equals to minus v divided by u. v is the image distance, u is the object distance. सो कन्वेक्स मिरर के केस में आपके पास क्या होता है? लेट्स से दिस इज़ अ कन्वेक्स मिरर। सो कन्वेक्स मिरर में आपकी इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, ठीक है। सो वो आपकी इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, और कहाँ बनती है? इस साइड में बनती है, राइट। या तो फोकस पे बनेगी या फिर पी और एफ के बीच में बनेगी। दो ही केसेस हैं। मान लो अगर यहाँ भी बनती है तो अभी आप इमेज डिस्टेंस कैसे मेज़र करोगे? पोल से मेज़र करोगे तो इमेज डिस्टेंस इस डायरेक्शन में है, लाइट भी इसी डायरेक्शन में आएगी। सो मैग्निफिकेशन आप कह सकते हो v का साइन क्या होगा? v पॉजिटिव होगा, ठीक है। बट u क्या है? u हमेशा नेगेटिव होता है आपका। तो यहाँ पे साइन चेक कर लेते हैं मैग्निफिकेशन का। सो m विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑलरेडी है, v आपका पॉजिटिव रहेगा और u आपका नेगेटिव हो जाता है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव साइन।
और हाइट ऑफ इमेज हमेशा आपकी लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है इन केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। सो अगर मैं इस इक्वेशन को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर देता हूँ, सो व्हाट विल आई गेट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन 1, और ये कैसा साइन का आएगा, प्लस साइन का आएगा। ठीक है, सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अब लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए कन्वेक्स मिरर ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव वाला तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, हम देख चुके हैं क्योंकि मैग्निफिकेशन हमारी पॉजिटिव आती है। सेकेंड, इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनती है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये करेक्ट है, हमारी जो मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आ रही है। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज इट सेइंग? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। ठीक है, सो आपको टेबल अगर आपने याद करी होगी तो 6 केसेस में से एक केस ये है आपका, जब आप कनकेव मिरर में, लेट्स से दिस इज़ अ कनकेव मिरर एंड इन द कनकेव मिरर व्हाट वी हैव डन, दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस, लेट्स से दिस इज पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो जब आप ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखते हो, लेट्स से दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट AB, सो आपकी इमेज कहाँ बनती है इस केस में? अगर आपको याद हो तो एक रे सीधी जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, राइट, लाइक दिस, और क्या होगा, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी जाएगी और सीधी ही वापस आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल होता है, सो नॉर्मल वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो फिर ये कहाँ पे जा रही है बेटा, इमेज कहाँ बन रही है आपकी, यहाँ पर बन रही है। सो दैट इज़ A'। सो आपकी इमेज कैसी बनी, A' रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, A' B' एंड लार्ज बनी है। ठीक है, एंड बियॉन्ड C बनी है। सो यहाँ पे आपको बस पोजीशन ही पूछी थी, इस केस में पोजीशन कहाँ बन रही है, बियॉन्ड C। सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और ऑल ऑफ दीज। सो आपको पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं? कोई भी लॉज वो केवल साउंड के लिए भी वैलिड होते हैं। ठीक है, सो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड योर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal, all of them lie in the same plane, right? And these laws are valid for each and every kind of the mirror. So which option will be the correct option here? Option number D, all of these is the correct option. Now let's move to the next question, question number 7. The object is placed at the focus of a concave mirror. Again आपके किससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन, इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड है। सो कनकेव मिरर के केस में कनकेव मिरर ड्रॉ कर देते हैं, लेट्स से दिस इज़ अ कनकेव मिरर, ओके, लेट्स से दिस इज़ द पोल, अगेन दिस इज़ द प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस, यहाँ आपकी बार आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है, लेट्स से AB इज़ द ऑब्जेक्ट देयर। क्लियर? सो क्या होगा, द इमेज इज़ फॉर्म्ड, इमेज कहाँ बनेगी? ठीक है, आप बताओ कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे जब बनती है सो अगेन एक रे सीधी जाएगी बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, और एक रे प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन एज इट इज़ उसी पाथ के अलॉन्ग रिट्रेस हो जाएगी। ठीक है, अब ये भी इन्फिनिटी पर जा रही है बेटा, ये बीट तो हमें कर नहीं रही, तो इमेज कहाँ भी लेगी बेटा, हम मानते हैं इस केस में कि आपकी जो इमेज है वो या जो रेज हैं वो कहाँ मीट कर रही हैं, दे आर मीटिंग एट इन्फिनिटी। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज इट सेइंग? वर्चुअल एंड इक्वल साइज इमेज इज फॉर्म्ड बाय, वर्चुअल इमेज बन रही है एंड इक्वल साइज है। वर्चुअल इमेज आपकी कनकेव में भी बनती है, कन्वेक्स में भी बनती है और प्लेन में भी बनती है, लेकिन जो साइज़ है वो केवल प्लेन मिरर में ही इक्वल बनता है। अगर आपको प्लेन मिरर में इमेज की प्रॉपर्टीज़ पता हो तो
उसी में केवल एक ऐसा केस आता है जहाँ पे इमेज वर्चुअल तो बनेगी लेकिन जो साइज़ है दैट विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज is equals to height of object. So which option will be the correct option? Option number A, plane mirror is the correct option. Now let's move to the next question. Question number 9 was it saying a virtual and diminished image is formed by. Again virtual image is there but this time image is diminished. That means height of image is less than height of object. सो कनकेव मिरर में जो आपकी इमेज बनती है वर्चुअल इमेज उसमें आपका ये रिलेशन तो होल्ड नहीं करता. ठीक है, प्लेन मिरर में भी नहीं करता. प्लेन मिरर में दोनों बराबर होते हैं. कन्वेक्स मिरर में केवल ये रिलेशन होल्ड करता है. सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी, कन्वेक्स मिरर विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए मिरर. Okay, so normally it is being incident on the mirror, then which of the following is true? Normally का मीनिंग क्या होता है? मान लो आपके पास एक मिरर है. लेट्स से अ मिरर इज़ गिवन टू यू. प्लेन मिरर ही ले लेते हैं, कोई भी एक मिरर ले सकते हो आप. ठीक है, नॉर्मली आपकी एक लाइट फॉल हो रही है इसके ऊपर. सो मान लो P पॉइंट पर लाइट फॉल हो रही है. नॉर्मली का मतलब वो नॉर्मल के अलॉन्ग ही फॉल हो रही है. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? यही आपका नॉर्मल है, यही आपकी इंसिडेंट रे है. सो इंसिडेंट एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल विच इंसिडेंट रे फॉर्म्स विद द नॉर्मल. सो इंसिडेंट रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर? सो नॉर्मल यहाँ पे तो आपने इस तरीके से बना दिया. अगर आपको कनकेव मिरर होता तो कैसे ड्रॉ करते? आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि अगर आपको पोल है, फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है. यहाँ पर अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो क्या करोगे? मान लो ये पॉइंट है ए जहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करना है. सो आप क्या करोगे? इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दोगे. सो दैट विल बी द नॉर्मल टू पॉइंट ए. क्लियर? इन दैट केस ऑल्सो इंसिडेंट रे विल लाई अलॉन्ग द नॉर्मल. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0. Let's move to the next question. Question number 11. If the ray of light falls normally on the interface of two media. Okay, let's say आपके पास ये एक इंटरफेस है. इस इंटरफेस के ऊपर आपको एयर है और इससे नीचे आपकी वाटर है या ग्लास है, जो भी आपको लेना है. ठीक है, सो दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर. ठीक है, इंटरफेस इज यू कैन से सरफेस विच सेपरेट्स द टू मीडिया. It is nothing just a medium, or you can say it is the surface which is separating the two media. So the angle of incidence will be what? Normally means again वही हो रहा है बेटा, आपकी जो ray of light है दो मीडिया पे नॉर्मली फॉल हो रही है. क्लियर? सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? अगेन नॉर्मल है, ये नॉर्मल के लॉन्ग इंसिडेंट राइट है. तो इंसिडेंट लाइट अगर नॉर्मल के लॉन्ग है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? अगेन दैट विल बी 0 डिग्री. क्लियर? Again it will be 0 degree. So option number A is the correct option. Okay, then let's move to the next question. Question number 12. When a ray of light enters from denser medium to rarer medium obliquely, then it bends towards the normal. It goes undeviated. It bends at 60 degree with the normal, or it bends away from the normal. So same situation है, एक इंटरफेस दिया हुआ है. ठीक है, अलग अलग मीडियम के लिए. यहाँ पर एयर है, यहाँ पे आप वाटर या फिर ग्लास जो भी आप लेना चाह ले सकते हो. क्लियर? लाइट आपकी ऑब्लिकली फॉल हो रही है. क्लियर? एंड इट इज़ गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, राइट. सो यहाँ पर ऊपर आपका मीडियम जो होगा वो एयर ना होके ग्लास होगा और यहाँ पर एयर ले लो. मीडियम आप इंटरचेंज कर दो, क्योंकि डेंसर मीडियम कौन सा है? ग्लास है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, और एयर कौन सा है? रेयर मीडियम जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है. सो अगर ग्लास से एयर में जाएगी तो क्या होगा? ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी. ठीक है, सो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है. सो अगर इंक्रीज़ हो रही है तो क्या होगा? वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी आफ्टर द रिफ्रैक्शन. सो जाना इसे इस तरीके से चाहिए था. ठीक है, बट एक्चुअली में ये किस तरीके से चली जाएगी? इस तरीके से चली जाएगी. सो इट इज़
bending away from the normal, right? So which option is correct? Option number D is the correct option, right? Is that clear? Now let's move to the next question. Question number 13. When a ray of light enters from a medium of refractive index n1 to the refractive index n2, clear, then sin I by sin r. तो sin I by sin r क्या होता है? स्नेल्स लॉ होता है, आपको बताया हुआ है. सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है. क्या होते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? पहला लॉ तो सेम ही है कि आपके जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे. इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड रे, in the case of refraction it is, and normal, they lie in the same plane, right? and second law क्या कहता है कि मान लो अगर आपकी लाइट n1 से n2 में एंटर कर रही है, ठीक है, कोई भी मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, एयर मान लो और दूसरा वाटर दिया हुआ है, ठीक है. सो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, वो सेम नहीं है. सो अगर लाइट फॉल करेगी तो क्या होगा? या तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बैंड होगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी. दैट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है. सो ये एंगल कौन सा हुआ? ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस. और ये एंगल कौन सा हुआ? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट. सो सेकेंड लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ क्या कहता है? क्योंकि दोनों सेम ही हैं. सो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस divided by sine of angle of refraction is equals to n2 divided by n1. यानी कि जिस मीडियम में लाइट जा रही है डिवाइडेड बाय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्लियर? और इसको इस तरीके से भी लिखते हैं अगर आपको याद हो तो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. इस तरीके से भी लिखा जाता है या इस तरीके से भी लिखा जाता है. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तीनों नोटेशन का सेम ही मीनिंग है. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? हमारा साइन आई बाय साइन आई पूछा था, n1 से n2 में जा रही है, सो दैट इज इक्वल्स टू n2 बाय n1. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. When a light enters from one medium to another medium obliquely, both having the same refractive index, then what will happen? So situation is similar to the previous question, but in this case what is happening? This is also n1, this is also n1. Refractive index is not changing. So obliquely वो enter कर रही थी. So refractive index same है, medium change नहीं हो रहा. तो जैसे जिस पाथ के अलॉन्ग वो पहले मूव कर रही थी इंटरफेस के बाद भी वो उसी पाथ के अलॉन्ग मूव करेगी, कोई भी डेविएशन नहीं होगा, ठीक है. सो विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट? इट गोज अनडेविएटेड. कोई चेंज हुआ पाथ में? नहीं हुआ, ठीक है. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज इट सेइंग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय. अभी आपको 13 क्वेश्चन में बताया था किस तरीके से नोट करते हैं. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या यूज़ करते हैं? एन यूज़ करते हैं. किसका पूछा हुआ है? ग्लास का. सो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर इस तरीके से लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. और कैसे लिख सकते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इस तरीके से लिखा जा सकता है. और कैसे लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. सो तीनों नोटेशन यूज़ हो सकती हैं. तो यहाँ पर आपकी कौन सी नोटेशन यूज मैच कर रही है? ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ठीक है. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. अ लेंस विच इज थिकर एट द मिडल, ठीक है, एंड थिनर एट द एजेस. सो वो कौन सा लेंस है? सो ये लेंस की प्रॉपर्टीज़ अगर आपने पढ़ी होंगी, सो जो लेंस आपका सेंटर से थिक होता है एंड जो एजेस से थिन होता है, तो वो कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस, ठीक है. ये सेंटर से थिक है और एजेस से थिन है. दिस प्रॉपर्टी इज फुलफिल्ड बाय कन्वेक्स लेंस. सो विच आंसर इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट है?
Option number C is the correct option. Clear? So that's all for today. Keep practicing more number of the questions to get the perfection. Okay. Till then, have a good day, everyone. We will see you in the next video. Till then, stay tuned. Thank you for watching, everyone.